BBC اردو کے پروگرام سربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. صوبہ خیبر پختونخوا کے ترقیاتی بجٹ میں 56 ارب روپے کی کمی. جو رقم مختص کی گئی اس کا بھی استعمال بہت سست روی سے. وجہ ہے کیا؟ زلزلے، بارشیں، سیلاب، اس طرح قدرتی آفات آتی رہی اور مگر میں کچھ 10 سے 15 بلین کے درمیان تو ہمارا پیسہ اس میں خرچ ہو گیا. صدر اوباما دوسری جنگ عظیم میں ایٹمی حملے کا نشانہ بننے والے جاپانی شہر ہیروشیما کا دورہ کرنے والے پہلے امریکی صدر بنے ہیں. اور دیکھیے گا بائیں بازو کی سوچ رکھنے والے پاکستانی میوزک بینڈ لال کے 2 گلوکاروں سے ایک خصوصی بات چیت. خیبر پختونخوا کو وفاق سے فنڈز نہ ملنے، کرپشن کے خلاف کڑی مہم اور صوبے کے اپنے وسائل میں مجوزہ اضافے میں ناکامی سے سالانہ ترقیاتی فنڈز کو 174 ارب روپے سے کم کر کے 118 ارب روپے تک لانا پڑا. لیکن اس رقم کا بھی مکمل استعمال نہ ہو سکا. حکومت کہتی ہے وہ 85% بجٹ استعمال کر چکی ہے. صوبے میں اس کٹوتی کے بعد سالانہ ترقیاتی بجٹ کا کل تخمینہ 118 ارب روپے لگایا گیا، لیکن اس میں سے صرف 111 ارب روپے خرچ ہوئے، جبکہ 3 سال کے وفاقی ترقیاتی منصوبے کا کل تخمینہ 328 ارب روپے لگایا گیا، جبکہ جاری کردہ رقم محض 131 ارب روپے رہی اور اس میں سے بھی صرف 107 ارب روپے خرچ ہوئے. پشاور سے عزیز اللہ خان کی رپورٹ. ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، کام ہو تو رہے ہیں، لیکن بڑی تعداد میں ترقیاتی منصوبے اب تک صرف کاغذی کارروائیوں تک ہی محدود ہیں. لوگ وفاق اور صوبے میں حکمرانوں کے وعدوں اور دعووں کی فوری تکمیل چاہتے ہیں. پشاور میں شمالی بائی پاس کے اس منصوبے کا آغاز 6 ماہ پہلے ہوا تھا اور اس کے لیے 1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. یہ منصوبہ اس سال دسمبر میں مکمل ہونا ہے. اس منصوبے کے تحت 3 اوور ہیڈ برج، سڑک اور سٹرکچر کا کام ہونا ہے. یہ منصوبہ وفاقی حکومت کا ہے. پشاور میں پیپلز پارٹی کے دور کا شمالی بائی پاس کا منصوبہ 7 سالوں میں بھی مکمل نہیں ہو سکا. مبصرین کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت نے 3 سالوں میں خیبر پختونخوا کی طرف کم توجہ دی ہے اور صوبائی حکومت اپنے وسائل پیدا ہی نہیں کر پائی، جس وجہ سے 56 ارب روپے کم کرنا پڑے. یوٹیلائزیشن تو سلو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسرے اصل میں انہوں نے بہت ساری سیف گارڈز کرپشن کو روکنے کے نام پہ کڑی کر دیں، احتساب کا عمل تیز کر دیا گیا اور تو اس وجہ سے سلو ہے، بہت زیادہ سلو ہے. خاص کر جو پرچیز وغیرہ جو جس طرح کا وہ پروسیس تھا وہ بہت زیادہ اس وجہ سے وہ ہوا ہے، سفر ہوا ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی میں حزب اختلاف کے اراکین کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت نے تبدیلی کے جو وعدے کیے تھے وہ مکمل نہیں ہو سکے اور ترقیاتی فنڈز کا بڑا حصہ استعمال ہی نہیں ہو پایا. 1 سال ہو گیا ہے. پچھلا جو ADP تھا کم از کم میں اپنے حلقے کے حوالے سے کہتا ہوں 0 یوٹیلائزیشن ہے اس ADP کا. 0 یوٹیلائزیشن. سب سے ولنریبل، آفت زادہ، سیلاب زادہ اور آرتھ کوئک بھی آیا تھا اس علاقے میں، یہ 1 اینٹ بھی نہیں رکھ سکے. وزیر اعظم نواز شریف کو 3 سالوں کے بعد اچانک خیبر پختونخوا یاد آیا ہے. جلسوں میں بڑے منصوبوں کے اعلانات بھی کیے گئے ہیں. لوگوں کے ذہنوں میں یہ کشمکش اب بھی پائی جاتی ہے کہ یہ وعدے وفا بھی ہوں گے یا صرف سنہرے خواب ہی رہیں گے. عزیز اللہ خان، BBC نیوز، پشاور. صوبے کے ترقیاتی اخراجات میں کمی اور فنڈز استعمال نہ ہونے کے تناظر میں ہمارے نامہ نگار عزیز اللہ خان نے صوبائی مشیر اطلاعات مشتاق غنی سے بات کی. پوچھا کہ حکومت پر الزام ہے کہ وہ اپنے ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص فنڈز کا صرف 60% ہی استعمال کر پائی ہے. کیا یہ درست ہے؟ ابھی اس سال کی جو ہماری ADP ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ 140 بلین کی تھی. اب اس میں 100 بلین جو تھے وہ لوکل کمپوننٹس تھے اور 40 بلین جو تھا وہ فارن کمپوننٹس تھا. اس کے اندر وہ پہلے سے پروجیکٹ چلے آ رہے ہیں. اب جو لوکل کمپوننٹ تھا ہمارا، اس میں سے 90 بلین یعنی 100 بلین سے 90 بلین ابھی تک خرچ کیے جا چکے ہیں اور جو پرسنٹیج بنتی ہے دیٹ از 90% لوکل کمپوننٹ کا. اب جو فارن فنڈڈ پروجیکٹس ہیں
ये अब वहाँ से पैसे आएंगे तो वो प्रोजेक्ट्स चलेंगे। तो वो 40 बिलियन था जिसमें से 23 बिलियन आया और खर्च भी हो गया, और इसकी परसेंटेज 57% बनती है। और अगर आप टोटल देखें तो 140 बिलियन की जो हमारी ADP थी उसमें से अभी तक 117 बिलियन खर्च हो चुके हैं। जो सालाना तरक्याती प्रोग्राम का ऐलान किया गया था बजट में, उसमें 3 मरतबा सूबाई हुकूमत को कट लगाना पड़े, तो इन कट लगाने की क्या वजूहात थी? जब आप बजट बनाते हैं ना, उसका एक असूल है कि जो आपकी एक्सपेक्टेड इनकम होती है आप उसको सामने रख के और उसको बजट में इनकॉर्पोरेट करते हैं आप। मतलब फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर जो हमारे पैसे बकाया हैं, अगर हम बजट में वो नहीं डालते और उसके ऊपर स्कीमें नहीं रखते तो हमारा तो क्लेम ही ख़त्म होकर रह जाता है। तो अपने क्लेम को भी कायम रखने के लिए हमें बजट में वो तमाम फिगर्स देनी होती हैं। बाज़ हालात की वजह से, जैसे हमारे सूबे में ज़लज़ले, बारिशें, सैलाब, इस तरह कुदरती आफात आती रहीं और मेरे ख्याल में कुछ 10 से 15 बिलियन के दरमियान तो हमारा पैसा उसमें खर्च हो गया। सूबाई हुकूमत की जो मुहिम है करप्शन के ख़िलाफ़, जिसमें नैब की भी एक्टिविटीज़ जारी हैं, सूबाई एहतिसाब कमीशन भी कायम किया गया है, एंटी करप्शन भी है, तो उस वजह से ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है कि खौफजदा है, वो फ़ंड्स रिलीज़ ही नहीं कर रही, जो सरकारी अफसरान हैं वो उन बिलों पे दस्तखत ही नहीं करे कि कहीं वो इसमें फंस ना जाएं। खौफ ज़रूर है, क्योंकि इमरान खान साहब ने पहले दिन कह दिया था कि ज़ीरो टॉलरेंस फॉर द करप्शन। ये सूबा करप्शन में धंसा हुआ था। माजी में यू नो वेरी वेल कि यहाँ ठेके बिकते थे, यहाँ नौकरियाँ बिकती थीं, यहाँ इकरबा परवरी थी, हर चीज़ का कीमतें लगती थी। आज अल्लाह का शुक्र है वो चीज़ें नहीं हैं। वो ना होने की बुनियादी वजह लेजिस्लेशन हमने करके, एहतिसाब एक्ट हम लेके आ गए, RTI का कानून पास करके, राइट टू इन्फॉर्मेशन, लोग कोई भी किसी महकमे के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। इससे ज़रूर लोगों पे थोड़ा हुआ और फिर उससे थोड़ा स्लो भी हुआ। फिर हमने उनको हौसला दिया कि देखें, हमारा इस एक्ट को पास करने का ये मकसद नहीं कि खाम खा किसी को एहतसाब वाले पकड़ के ले जाएंगे, गो कि वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो एक ऑटोनमस बॉडी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि खाम खा किसी को वो उठा के ले जाएंगे। और अब दीगर मौज़ूआत पर एक नज़र। बराक ओबामा आज जापान के शहर हिरोशिमा जाने वाले पहले अमरीकी सदर बन गए। अमरीका ने हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को एटम बम गिराया था, जिससे 1,40,000 अफराद हलाक हुए थे। तहम व्हाइट हाउस ने एटम बम गिराने पर माफ़ी मांगने के तासुर को मुस्तरद किया। ज़ियाद ज़फ़र की रिपोर्ट। हिरोशिमा में कदम रखने वाले पहले सर्विंग अमरीकी सदर की आमद पर जज्बात हर जगह जाहिर थे। कतार में इनसे 10 नंबर पीछे एक और अमरीकी सदर हैरी ट्रूमन ने इस शहर को एक हुक्म से मुकम्मल तबाह कर दिया था। हिरोशिमा पर एटम बॉम्ब गिराए जाने से 1 मिनट के अंदर अंदर 1,40,000 अफराद हलाक हो गए थे। सदर ओबामा ने कहा कि इस दिन की यादें कभी फरामोश नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने दुनिया में पहले एटमी हमले पर जापान की आवाम से माफ़ी नहीं मांगी। सदर ओबामा ने एटमी बम हमले के कई मुतासरीन से बातचीत की और इस मौके पर खिताब करते हुए अक़वाम आलम पर जोर दिया कि वो दुनिया को एटमी हथियारों से पाक करने की कोशिशें करें। हम में ये जुर्रत होनी चाहिए कि हम खौफ के मंतिक से छुटकारा हासिल कर सकें और एक ऐसी दुनिया के लिए कोशिश करें जो जौहरी हथियारों से पाक हो। इस मुश्किल और पेचीदा तारीख के बावजूद आज जापान अमेरिका का सबसे मजबूत और करीबी इत्तेहादी है। सदर ओबामा ने इस बात की निशानदही करते हुए कहा कि उनका दौरा इस बात का सबूत है कि इख्तिलाफात कितने ही तकलीफ दे और गहरे क्यों ना हों, इन्हें ख़त्म किया जा सकता है। जापान में मुनक़िदा अमीर तरीन ममालिक के ग्रुप G7 की सरबराह कॉन्फ्रेंस के एलामिये के मुताबिक बरतानिया का यूरोपीय यूनियन से अलहदगी का वोट आलमी पैदावारी तरक्की के लिए शदीद ख़तरा हो सकता है। G7 ने खबरदार किया कि यूरोपीय यूनियन से बरतानिया के निकल जाने से आलमी तिजारत, सरमायाकारी और मुलाजमतों के रुझान का रुख बदल सकता है। ब्राज़ील में पुलिस रियो डी जेनेरो में एक नौजवान लड़की को मुबैना तौर पर गैंग रेप करने और बाद में उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर जारी करने वाले 30 मुश्तबा अफराद को तलाश कर रही है। इत्तलात के मुताबिक ये लड़की शनिचर को अपने बॉयफ्रेंड के घर गई थी, लेकिन बाद में जब उसे होश आया तो उसे बहुत सारे अफराद ने घेर रखा था।
ऑस्ट्रेलिया में रोशनियों के सालाना मेले फेस्टिवल ऑफ लाइट्स का आगाज हो गया है। इस साल सिडनी का मशहूर ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया की ओरिजिनल या कदीम नस्लों की मुसव्वरी से रोशन होगा। इस मुसव्वरी में दुनिया के वजूद के बारे में ओरिजिनल सकाफत की कदीम कहानियों की अक्कासी की गई है। आप बीबीसी उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा कि क्या पाकिस्तानी म्यूजिक बैंड लाल की मौसीकी पाकिस्तानी अवाम की उमंगों की नुमाइंदगी करती है। और अब आप गत्ते और घर की दीगर अशिया की मदद से एक रोबोट कैसे बना सकते हैं, देखिएगा क्लिक में। बीबीसी उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। फैज़ अहमद फैज़ और हबीब जालिब जैसे शायरों के कलाम को अपने नए तर्ज की मौसीकी में ढालना, इसकी वजह शोहरत और इनफरादियत है। नाम है लाल बैंड, जो अलकेमी फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए आजकल लंदन में मौजूद है। चंद रोज़ पहले वो बीबीसी उर्दू के दफ्तर तशरीफ़ लाए, जहाँ हमारी साथी आलिया नाज़की ने उनसे बात की। जानना चाहा कि उनको जो पजीराई मिली है उसमें ज़्यादा ताउन उस शायरी का है जिसका वो इंतखाब करते हैं, या फिर ख़ुद उनकी अपनी मौसीकी का। हमने जब बैंड फॉर्म किया लाल, तो हम सबसे पहले थे आई थिंक जिन्होंने इस तरह की शायरी, पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरी शायरी को गाया। तो इसलिए लोगों ने सोचा अच्छा ये तो कुछ मुख्तलिफ ही है बाकी जो गाने शाने निकल रहे हैं, और उस तरह की चीज़ों के बारे में हम गा रहे थे जो उस वक्त बहुत ज़्यादा रेलेवेंट थी। तो इसलिए लोगों ने और भी ज़्यादा अप्रिशिएट किया। आई वुड होप कि हमारे म्यूज़िक से भी उनको काफ़ी रिलेट करते हैं और अच्छा लगता है। मगर बेसिकली शायरी और ये फैज़ अहमद फैज़, हबीब जालिब, इन सारों का कमाल भी। अच्छा, आपकी मौसीकी का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो गिटार काफ़ी नुमायाँ है आपकी सारी मौसीकी में। जैसे कल आज और कल जो आपका गाना पिंक फ्लॉयड से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड। बहुत ज़्यादा, हम दोनों बहुत शौकीन हैं पिंक फ्लॉयड के एंड जनरल क्लासिक रॉक का जो जॉनर है। सो आई थिंक वो हमारे म्यूज़िक में भी थोड़ा आगे आता है। और यही बात थी एक्चुअली, इसमें कोई शक नहीं कि वो जो शायरी है वो उसने उर्दू की अदब को रीडिफ़ाइन कर दिया। उसके बग़ैर उर्दू अदब को आप नहीं पढ़ सकते, समझ सकते आज के जदीद उर्दू अदब को। और हमारा म्यूज़िक उस लेवल का तो नहीं, मगर ये ज़रूर था कि हमने एक कुछ ऐसी नज़में एक नए तर्ज से जब गिटार के साथ जोड़ी, तो लोगों ने कहा कि ये शायरी हमने सुनी हुई है मगर एक नए तरह से बयान की जा रही है। किस तरह के मौज़ूआत का आप इंतखाब करते हैं, पहले फ़ौजी आमरीत के ख़िलाफ़ और उसके बाद फिर इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़, उसकी वजह से आपको कभी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है पाकिस्तान में? शुक्र है सीरियस नहीं हुआ। पिछले साल थोड़ा सा हो गया था, ट्रीज़न के लिए तैमूर को अक्यूज़ किया गया था ऑब्वियसली रॉन्गली, बट अदरवाइज़ छोटी मोटी थ्रेट्स तो फेसबुक पे मिलती रहती हैं। बट फेसबुक को आपको पता है लोग ज़्यादा बहादुर होते हैं, रादर आपके मुंह पर आकर कभी नहीं कहेंगे, उधर जितनी गालियाँ देनी है फेसबुक पे तो रोज़ का मामूल है ये। और ये तो एक छोटी सी बहुत ही वायलेंट और ब्लैकमेलिंग की अक़लियत है जिसने ये इंतहा पसंदी करके पाकिस्तान का सारा सियासी माहौल वगैरह ख़राब किया है। मगर मैं समझता हूँ कि ट्रेडिशनली अपनी तारीख़ के एतबार से मुझे तो यही मैं इस हवाले से बहुत शायद ओवरली ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि हमारे अंदर एक रवादारी का पुराना ट्रेडिशंस सूफ़ियों के ज़माने से लेकर अब तक चल रहा है, और उसको बस रिवाइव करने की ज़रूरत है उस टॉलरेंट ट्रेडिशन को। का बंजो मेरा देश है, दर्द की अंजुमन जो मेरा देश है, कि लड़कों की अफसरदा जानो कि ना
वालदैन के तैमूर रहमान और महवश वक़ार से आलिया नास्की ने बात की। हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आज की दिलचस्पी जिन खबरों में रही उनमें चीन में कपड़े धोने वाले पाउडर के मुबैना नस्ल परस्ताना इश्तिहार पर सोशल मीडिया पर बहस की खबर आपने बहुत शौक से पढ़ी, जबकि दौलत इस्लामिया के खिलाफ जंग में अमरीकी फ़ौजियों की तस्वीर मंजर आम पर आने की रिपोर्ट भी आपके रडार पर रही। अब आप भी घर बैठे घरेलू अशिया से कारामद रोबोट्स बना सकते हैं और फ़िज़ा से तस्वीरें लेना तो पहले भी मुमकिन था, मगर था महंगा। मगर अब ये सस्ते दामों कैसे हो सकेगा? सही अंदाज़ा लगाया आपने। अब वक्त हुआ है साइंस और टेक्नोलॉजी बुलेटिन क्लिक का, आज नुसरत जहां के साथ। सस्ते स्मार्टफोन के बाद अब सस्ते ड्रोन। चीनी मैन्युफैक्चरर शोमी का ये ड्रोन उसके हरीफ DJI के ड्रोन से खासा सस्ता है। स्टेबलाइज कैमरे से लैस मी ड्रोन आधे घंटे तक उड़ सकता है। इसकी कीमत $381 है और मजीद कुछ रकम खर्च करके इसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरा भी लगवाया जा सकता है। अपना रोबोट बनाने और इस्तेमाल करने का मजा ही और है। Zero U ने एक ऐसी किट तैयार की है जिसके जरिए आप गत्ते जैसी सादी अशिया से रोबोट बना सकते हैं। बस जहन जरा सा तख्लीकी और साइंसी होना चाहिए। 8 से 13 बरस के बच्चों के लिए बनाया गया ये रोबोट किसी भी उम्र के अफराद का दिल लुभा सकता है, क्योंकि घरेलू अशिया की मदद से आप इसे मर्जी के मुताबिक ढाल सकते हैं। कुछ लोग इसलिए ट्विटर पर खुलकर इजहार ख्याल नहीं करते कि कहीं लोग उन्हें मनफी तनकीद और गालम गलौज का निशाना ना बनाएं। फिक्र ना करें, क्योंकि ट्रोल्स यानी बुरी ज़बान इस्तेमाल करने वालों से निमटना ट्विटर की अवलीन तरजीह है, ताकि यूजर्स बगैर किसी खौफ के राय दे सकें। अब लोगों को ऐड और ब्लॉक करने और ट्रोल्स को रिपोर्ट करने के लिए नए टूल्स दस्तयाब होंगे। यकीनन ये ट्विटर के 300 मिलियन यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। अमरीकी नेवी ऐसे ड्रोन्स पर तजर्बात कर रही है जिन्हें तेजी से फिजा में छोड़ा जा सके। लोकस नामी प्रोग्राम के छोटे छोटे बमों से लैस इन ड्रोन्स के झुंड दुश्मन पर छोड़ दिए जाते हैं। ये अपने टारगेट को कामिकाजी मिसाइल की तरह निशाना बनाते हैं। ताहम फिलहाल इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का इम्कान नहीं है। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पे भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शफ़ी_नक़ी_जामई। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। मुझे पूरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।